Hello and welcome. If you are planning to take psychology optional in UPSC examinations, you may have some doubts in your mind. The first and foremost thing that comes in UPSC aspirants, in the mind of UPSC aspirants, is that whether it is scoring or not. Because आजकल जो बहुत सारे लोग हैं ना, they are talking that it is not scoring, this subject is scoring. So this patterns keep changing. There may be some substance, but let me tell you the fact. From my point of view, that it happens with every subject, and if that is the fact, then it applies to every subject. But from my own data, in Beautiful Mind IS data, what I can say that recently Akshay Babu got 295 and Bhuvnesh Ram to, I think, 293, maybe 291 or 90. This one. Two data. This is Akshay Babu and Bhuvnesh Ram. You can check on our website and other sources. So if you are getting marks in this range, you cannot say that it is not a scoring. But of course, in some particular year, you may say that some people get 285, then in some year you can say 306 also. Because suppose Anuj Malik has got 306 marks, Joseph has got 311 marks, and one other person 318 marks. So it happens. But now, when you say that as far as the result is concerned, how many people take psychology and how many get successful? If you take this ratio, this population and sample, if you see this one, then you take here political science and this one. Because this, one thing is called base rate. Base rate. Generally, this is a topic in psychology to study. Daniel Kahneman has emphasized, who has been given Nobel Prize also, that generally we ignore that. And how many have taken? जब आप रिजल्ट देखते हैं तो आप ये नहीं देखते कितने लोगों ने लिया था. तो पॉलिटिकल साइंस तो हजारों हजार लोगों ने लिया, देन रिजल्ट भी ज्यादा दिखेगा ना. लेकिन सपोज कि साइकोलॉजी 100 लोगों ने लिया, then in that ratio you should see that thing. So what is more in number, that absolutely will not tell you the whole story. I hope you have understood. इतना तो लॉजिकली आप समझते ही होंगे. बट क्वेश्चन ये है कि हाँ ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे ना कि बेस, तो उसमें आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर होता है. इफ यू से दैट साइकोलॉजी, in psychology suppose one person has got 240 marks, then in political science also you'll find that many people have got only 220 marks, 210 marks. but आप वो क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि बाकी रिजल्ट के कारण ये साइडों में चला गया. दिस इज द लॉजिक. You should understand. You should scientifically, you can do research and you can find the. So after all these things, if you find that yes, I should take psychology, then I can tell you what we have for you. Getting? अगर आपको, if you are not convinced, if you are not comfortable, then take the subject you like. कोई जरूरी नहीं psychology. Whatever subject you like, you go for it. But once you take that subject, then stick to that. In my opinion and expert opinion also, as far as optional subject is concerned, which subject you should take? So generally, the foremost thing is that interest. अगर उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, then you should take that. And generally, you develop interest when you have some aptitude. Elizabeth has given a theory that interest हमेरा हमेशा उन चीज़ों में जनरली होता है जिसमें हमारा थोड़ा बेसिक एप्टीट्यूड होता है. बट सम टाइम इंटरेस्ट में डेवलप आउट ऑफ सोशल लर्निंग, दूसरे को देख के भी हो जाता है. तो वो आप चेक कर लो कि आपका इंटरेस्ट जेन्युइनली है कि नहीं. एंड सेकेंड थिंग इज दैट बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड. अगर आपका जैसे कॉलेज में साइकोलॉजी लिया या 12th में अच्छा पढ़ के लगा, तो ये सब सफिशिएंट है कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप अच्छा करोगे. फायदा क्या होता है कि यू सपोज कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो यू लव डूइंग दैट. सो लाइकवाइज if you have interest in behavioral science, then why this person is behaving the way he or she is doing,
देन यू हैव नेचुरल इंटरेस्ट, तो आपको एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता ज्यादा। यू आर गेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट दैट आई कैन हाईलाइट हियर। तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इट थिंग्स, जैसे आप बहुत सारे लॉजिक सुना होगा आपने कि पॉल साइंस ले लो, ज्योग्राफी ले लो, क्योंकि पॉल साइंस जीएस में भी आता है। ये लॉजिक को मैं बताता हूँ, एक मिनट। जीएस का पॉल साइंस देखो और पॉल साइंस जो ऑप्शनल है उसके देखो, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी आएगी, उसकी कंपैरेटिव एनालिसिस आएगी, सर योर एनालिटिकल नॉलेज विल बी टेस्टेड एट अ डीपर लेवल। सो इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट व्हाट यू आर स्टडिंग इन जीएस। जीएस का लेवल तो बहुत कम है और ऊपर वाला है जनरल स्टडी, जो सबको जानना चाहिए। सो डोंट गो बाय दिस लॉजिक, ठीक है। और उस लॉजिक से चाहे तो सभी को वैसा ही सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, ऐसा होता है क्या? देखो आप डेटा में नहीं है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव वही करिए जो आपको पसंद आए, मतलब रियल में आपको इंटरेस्ट है, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया माना है। देन कम्स अ ट्रेंड, क्या है और वो क्या है, वो क्या है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ सब कुछ बात बैठ गया कि ट्रेंड वेंड सब कुछ समझ में आ रहा है, मैंने अपना बता दिया। आजकल तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारे लोग प्री ही क्लियर नहीं कर पाते, साइकोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लिया, प्री नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है कि फिर तो हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट दिखता नहीं ना आगे। तो इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि साइड बाय साइड आप स्ट्रेटजी सही होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी चीज को आप उतना प्रिपेयर नहीं कर पाते, ऑल दो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, ये ध्यान रखना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपने एफर्ट्स नहीं लगाए वगैरह, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि साइकोलॉजी लेना है, तो आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मैं भी बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी ये नहीं होना चाहिए कि पीटी के जो जैसे प्रीलिम्स है, बहुत सारे लोग आते प्रीलिम्स के बाद कि मुझे टेस्ट सीरीज करना है ना। क्या आता है उसके पास नॉलेज, क्या रहता है, तो एनसीईआरटी पढ़ा है ये और स्मारक सेन ये सब कुछ पढ़ लिया, उससे क्या हो जाएगा आपका? नहीं होता ना। आप जो साइकोलॉजी लेके पढ़ा है, जिन्होंने क्लियर किया है, स्कोर किया, उससे पूछो। इट टेक्स टाइम, तो आपको थोड़ा सा ना टाइम देना चाहिए। तो स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि आप प्री के पहले बहुत सारे एरियाज को लगभग खत्म कर लो, यहाँ पे उसको आप रिवाइज करो, इम्प्रूव करो, ये वाला स्ट्रेटजी होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम ऑल टुगेदर नया है और आपने एकदम शुरू कर दिया यहाँ पे, बाकी यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे जाके? कुछ नहीं मिलेगा, तो यू विल बी फेल्ड, ये कह रहा हूँ। तो ये कौन सा स्ट्रेटजी किसने बनाया है? जिसने बनाया उससे पूछो कि न खुदा मिला न विसाले से, न मैं कर क्या रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं प्री पास भी कर रहा हूँ तो मुझे मिल क्या रहा है। तो योर स्ट्रेटजी शुड बी बेस्ड ऑन प्री ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो, दोनों के इंटरव्यू सबको लेके चलना है। लेकिन हाँ बहुत सारे एंग्जाइटी ड्रिवन लोग होते हैं, वो ओवर कंसर्न रहते हैं, जैसे तैसे नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते। तो स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि जैसे 2027 में आपको देना है, तो अभी से आप करोगे ना, तो जैसे ऑप्शनल आप करेंगे तो धीरे 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 ये करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 28 चैप्टर्स है तो यूनिट वाइज आप करेंगे तो ये हो जाएगा। साथ में आप जीएस का फाउंडेशन में, जो कोचिंग की केवल फाउंडेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप जो फाउंडेशन वाले एरिया है सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो उसको आप कम से कम अपने बेसिक लेवल का तब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो बेस्ट तरीका है कि कोई गाइड और मेंटर हो आपको, कम से कम ऑप्शनल में तो जरूर चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये जनरल है, ये सब मैनेज कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं मैनेज हो, क्यों? डीपर लेवल की, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, यू शुड टेक हेल्प ऑफ सम मेंटर एंड गाइड, ठीक है। वो आपके आंसर को इवैल्यूएट करेंगे। और ये अगर आप साइकोलॉजी लेते हो तो ये आप मेरे से ले सकते हो गाइडेंस। हमारे पास एक कंप्लीट चीजें होती है कि जैसे हम आपको क्लासेस देते हैं, तो क्लास में मतलब बेसिक तो डिस्कस कर ही दिया है ना, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन होता है हमारा टेस्ट का, कि आप उसका आंसर लिखते हो एंड इट विल बी इवैल्यूएटेड बाय मी। तो ध्यान रखना कि आंसर का इवैल्यूएशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो लिखा था वो कहाँ गलती है और उसको कैसे फिक्स करें। तो ये चीज पैसिव तरीके से बड़े एक्टिव लर्निंग के फॉर्म में होता है।
उसके बाद जो है उसमें बहुत सारे पीवाईज क्यूज भी डिस्कस करेंगे और अबव मतलब पीवाई क्यू से रिलेटेड नहीं केवल जो ऊपर वाला भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो ये एक पूरा तरीका होता है तैयार करने का। तो एक यही फॉर्मेट आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अपनाइए, देन यू विल बी एबल टू मेक इट। ठीक है। तो अगर आप का पास कोई मेंटर है, गाइड है, वैल्यूएटर है ना, तो बहुत ही मायने रखता है। अदरवाइज आप अकेले कैसे करोगे इसको? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू। आपने आंसर लिखा तो अपना बेस्ट ही निकालोगे ना। आप आंसर तो यू विल एवरीबडी विल ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ द माइंड जो है उसको। बट इफ देयर इज फ्लॉज, हाउ विल यू डिटेक्ट दैट थिंग, हाउ विल यू फिक्स दैट प्रॉब्लम? एक ने कहा ये खुद से हो सकता है, बट एक साइकोलॉजी में मेथड है जिसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। मतलब कोशिश करो, गलतियों से खुद से सीखो। तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा आपको, है ना, 2 साल 3 साल 4 साल टाइम लगेगा। तो हो क्यों नहीं सकता, बिल्कुल हो सकता। और वही गाइडेड लर्निंग करोगे तो ये टाइम जो है सेव होगा। हो सकता है शुरुआत में ही कर जाओ। तो ये सब कुछ देख लेना चाहिए आपको। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेटजी नहीं सही होगा तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटजी भी हो, सब्जेक्ट भी तैयारी हो, सही से हो, और एक हर चीज का एक पेडागोजी का मेथड है। अगर आप प्रिपरेशन में मेथड को फॉलो करेंगे डेफिनेटली वो रिजल्ट तक आपको ले जाएगा, है ना। तो उसमें अगर आप साइकोलॉजी लेना चाहते हैं तो हमारा एक ऑनलाइन बैच रहेगा, अभी आने वाला है। हमारे वेबसाइट जो है beautifulmind.in पे जा सकते हो आप। इस पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 9 PM से हम शुरू करेंगे इवनिंग में। तो आप GSBS सब पढ़ लो रात में मेरे साथ, सिर्फ तुम बस 90 मिनट्स में दो, और फिर देखो 6 मंथ में मैं आपके साथ क्या करता हूँ। इसमें मैं क्लास दूंगा, क्लास खत्म होने के बाद एक क्वेश्चंस दूंगा, है ना, लिखने के लिए। वो आप आंसर लिखोगे और व्हाट्सएप पे जमा कर दोगे जैसे, या टेलीग्राम पे, जो भी। वो मैं इवेलुएट करूंगा उसको खुद से, देखूंगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आप आंसर कर दो उसको, सोचने के बाद आंसर कर पाओगे। तो देखो क्लास हो गया, ये हो गया, अपडेटेड मटेरियल भी दूंगा। और ये एक टेस्ट तो ये चल रहा है, बीच बीच में ना बड़ा टेस्ट भी लूंगा, पीरियोडिक टेस्ट, वो भी हो यूनिट वाइज। जैसे 28 यूनिट्स है ना, तो 28 टेस्ट भी लूंगा मैं। आप समझ रहे हैं क्या है ये? तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल मेंटरशिप है। तो आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि एक तो हो गया क्लास, फाउंडेशन क्लास हो गया। दूसरा हो गया नहीं, इसको बोलो डेली आंसर राइटिंग हो गया, है ना। ये जरूरी हो जाता है, शुरुआत में आदत लग जाती है। तीसरा हो गया टेस्ट सीरीज हो गया। चौथा हो गया मटेरियल हो गया, है ना। ये 4 चीजें आपको मिल जाती है। प्लस 5वां हो गया पर्सनल मेंटरिंग हो गया। आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। हमारे एक स्टूडेंट से मैंने बताया था कि सबसे, उसने पूछा अभी चैत्रा टेरेसा जो है, जो उसने कहा कि आप मेरे सबसे अच्छा इस क्लास में ये लगता है कि आई कुड आस्क एनी इवन स्टूपिड क्वेश्चन, सो यू कैन अंडरस्टैंड द कंफर्ट। सो डायरेक्टली आप जब टीचर से बात करते हो देन यू फील ना कनेक्टेड, एंड देन आप उस तरीके से उसको अपने को टाइमली रेक्टिफाई कर पाते। तो ये चीजें हैं जो हमारे ऑनलाइन पर्सनल मेंटरिंग प्रोग्राम में मिलेगा आपको, है ना। तो ये फरवरी में शुरू होने वाला है, लास्ट फरवरी वीक में, अबाउट 25 से शुरू होगा 26। तो अगर आप कंफर्टेबल हो और चाहते हो साइकोलॉजी लेकर हम आगे परस्यू करें चीज़ों को, तो आप कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और जहाँ कहीं भी अगर कुछ और डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारा नंबर वगैरह सब दिया रहता है डिस्क्रिप्शन वगैरह में। हम आपके और डाउट्स भी क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।